Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today we will again discuss the another part of principles of inheritance and variation. So, we are discussing the principle of inheritance and variations. So, the chromosomal theory of inheritance we will study. Chromosomal theory of inheritance was given by Boveri and Sutton in 1900s. Chromosomal theory of inheritance किसने दी थी? Boveri and Sutton ने दी थी in early 1900 में. तो Boveri and Sutton ने क्या कहा था कि it is the fundament, ये जो आपकी chromosomal theory of inheritance है, ये किसने दी थी? Boveri and Sutton ने. Boveri and Sutton ने अर्ली 1900s में दी थी. इट इज़ द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स. ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरी है जेनेटिक्स की. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर फाउंड इन द क्रोमोसोम्स. ये थ्योरी क्या कहती थी कि जीन्स जो हैं दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स. Chromosomal theory of inheritance came into existence long after Mendelian genetics. ये जो chromosomal theory of inheritance थी, ये कब existence में आई? Long after the Mendelian genetics. During Mendel experimentation, the society was not accepting to such drastic changes in their scientific manner. Society जो Mendelian genetics में जो drastic changes आए, उनको accept नहीं कर रही थी. They couldn't believe the existence of such drastic factors such as genes which would segregate without mixing, as this doesn't support their idea of constant changes leading to evolution. So they couldn't believe the existence of such discrete factors such as genes. Society was not accepting the drastic changes which come in the scientific manner, and they were also not accepting the एग्जिस्टेंस ऑफ सच ड्रास्टिक फैक्टर्स. कौन से ड्रास्टिक फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस को नहीं कर रही थी एक्सेप्ट? जीन्स की. विच वुड सेग्रीगेट विदाउट मिक्सिंग. जो क्या करते हैं? विच वुड सेग्रीगेट, जो सेग्रीगेट हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग. एज दिस डिडंट सपोर्ट देयर आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट चेंजेस. एज कि ये किसको सपोर्ट नहीं कर रही थी? आइडिया ऑफ कॉन्स्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग एवोल्यूशन. Moreover, means of communication at that time was very poor. जो means of communication थे at that time, that was very poor, and as a result of which means of communication at that time was very poor, and as a result of which the information could not be spread to the masses. तो जो information मेंडल ने देनी चाहिए वो that was not, मतलब the means of communication was very poor and he was not able to spread this information to the masses. तो ये भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे उस टाइम के. Also Mendel mathematical approach to prove biological laws was unacceptable. जो मेंडल ने अपने बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को प्रूव करने के लिए जो मैथमेटिकल अप्रोचेस लगाई, दैट वाज आल्सो अनएक्सेप्टेबल. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, हुगर, एवरेज, कॉरेंस एंड टेस्मार्क, Huger, De Vries, Correns and Teschmark, they discovered chromosomes which existed inside the nucleus. तो जब मेंडेलियन जेनेटिक्स के ड्रॉबैक्स आए कि उसको एट दैट टाइम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन was very poor and he was not able to spread the information up to the masses because of poor communication of that time. तो क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, कोई साइंटिस्ट आए, ह्यूगर, डे व्रीज, टेस्मार्क एंड कोरेंस. इन्होंने क्या बताया? दे डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स. इन्होंने क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस बताई, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. Sutton and Boveri observed the behavior of the chromosomes when the cells were divided. Sutton and Boveri ने क्या बताया? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स. बिहेवियर बताया क्रोमोसोम्स का. कब बताया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स? व्हेन द सेल्स वर डिवाइडेड. जब सेल डिवाइड होने लगे तो सटन एंड बवरी ने क्या बताया? बिहेवियर ऑफ
chromosomes. So with the advancements in the microscope, this task become easier. जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट हुई ये टास्क ईजी होता गया. Hence they proved Mendel laws with the help of chromosomal movement. तो जो आपका मॉर्गन जो था साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, दे प्रूव मेंडल लॉज with the help of chromosomal movement. They showed the segregation of chromosomes during the anaphase of cell division. जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई with the advancements in the microscope task become easier. टास्क इजी हो गया. तो क्या, तो जो मेंडल लॉज थे, हेंस दे प्रूव्ड मेंडल लॉज. मेंडल जो था, जब तक मेंडल का जो उसका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में मेंडल के लॉज अनएक्सेप्टेबल थे. जो उसने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड. तो टाइम पास जब हुआ तो ये जो साइंटिस्ट आए ह्यूगो डेवरिस्ट, कॉरेंस एंड टेशमार्क, दे प्रूव द, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम्स की एग्जिस्टेंस डिस्क्राइब की. ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. तो इसके साथ ही क्या किस चीज़ की डिस्कवरी आई, किस चीज़ को इन्होंने प्रूव कर दिया, मेंडल लॉज को भी प्रूव कर दिया. मतलब दे प्रूव मेंडल लॉज अलॉन्ग विद द डिस्कवरी ऑफ द क्रोमोसोमल मूवमेंट. दे शोड द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन. इन्होंने क्या शो किया, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन. The idea of chromosomal segregation combined with the Mendelian principles give rise to chromosomal theory of inheritance. The idea of chromosomal segregation, ये जो आइडिया था chromosomal segregation का, combined with the Mendelian principles, किसके साथ, combined with the Mendelian principles that give rise to chromosomal theory of inheritance. तो जो आइडिया था chromosomal segregation का, along with the theory Mendelian principles that give rise to chromosomal theory of inheritance. The work was further carried forward and proved by T.H. Morgan. ये काम और आगे बढ़ाया गया और किसने डिस्कवर किया इसको, T.H. Morgan ने डिस्कवर किया, who used Drosophila melanogaster to show sexual reproduction give rise to variations. तो ये जो वर्क था ये आगे फर्दर कहाँ गया, that was further कैरिड फॉरवर्ड टू मॉर्गन ने इस काम को आगे बढ़ाया. उसने क्या कहा, उसने यूज़ किया ड्रोसोफिला मेलैनगोस्टर का, एंड ही एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू वेरिएशंस. ठीक है जी. तो इस तरह से मेंडल के जो लॉज हैं वो भी प्रूव हुए. ऑब्जर्वेशंस क्या थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की. Observations of chromosomal theory of inheritance. During the process of cell division, the pair of homologous chromosomes move as discrete structures which are independent of other pair of chromosomes. During the process of cell division, ये जो process होता है cell division का, during the process of cell division, ये जो homologous pair of chromosomes हैं, they segregate as discrete structures. ये अलग हो जाते हैं as discrete structures, and ये जो which are independent of the other pair of chromosome. ठीक है जी. तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जब सेल डिवीजन होगी, जब मियोसिस होगा, तो ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे मूव एज डिस्क्रीट यूनिट्स. ये कैसे मूव करते हैं, एज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स which are independent of the other pair of chromosomes, right? There is a random distribution of chromosomes into the pregamete from each homologous pair. और यहाँ पे random distribution होती है chromosomes की into the pregamete from each homologous pair. Each parent synthesizes gametes which constitute only half of the chromosomal complement.
ईच पेरेंट, हर पेरेंट क्या सिंथेसाइज करता है, ईच पेरेंट सिंथेसाइजेस गैमीट्स, हर पेरेंट गैमीट सिंथेसाइज करता है विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट। Even though female and male gametes differ in their size and morphology, they have the same number of chromosomes, submitting equal genetic contribution from each parent. तो फीमेल जो है एग, मेल जो है स्पर्म, ये डिफर करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, साइज में, मॉर्फोलॉजी में, तो देन दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं which are submitting equal genetic contribution from the parent. The gametic chromosomes during fertilization, ये जो gametic chromosomes होते हैं, the chromosomes जो आपके gametic chromosomes हैं, they fuse during fertilization to produce offspring with the same number of chromosome as the parent. ये जो gametic chromosomes होते हैं, ये they fuse during fertilization, ये फ्यूज कर जाते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट। क्लियर? मैंने कहा कि जो फीमेल है, फीमेल एग और मेल स्पर्म है, ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं अपने साइज में, अपने शेप में, अपनी मॉर्फोलॉजी में डिफर करते हैं, बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सबमिटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जो गैमेटिक क्रोमोसोम्स हैं, ये जो गैमेटिक क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या करते हैं, दे फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड बोथ ऑफ द दे फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट। तो जो मेल और फीमेल फर्टिलाइज करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे एज दैट ऑफ द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स में होते हैं। Both genes and chromosomes play an equally important role in holding the information. Both genes and chromosomes, genes और जो chromosomes हैं वो equally important role play करते हैं in holding the genetic information. The chromosomes has many genes and these genes hold the information to build the specific protein. Both genes and chromosomes play an equal role in होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। जीन्स और क्रोमोसोम्स इक्वल रोल प्ले करते हैं इन होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या होते हैं, दे हैज़ मैनी जीन्स, क्रोमोसोम्स हैज़ मैनी जीन्स एंड दीज जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन एंड दीज जीन्स होल्ड द इंफॉर्मेशन टू बिल्ड द स्पेसिफिक प्रोटीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जीन क्या करते हैं, they hold the information for the synthesis of proteins, right? So अभी मैं आपके साथ एक डिफरेंस डिस्कस करूंगी। What are the difference between genes and chromosomes? क्या डिफरेंस है जीन्स और क्रोमोसोम्स में? Genes are located on the chromosomes. Chromosomes are the packed structure of DNA with proteins. जीन्स किसके ऊपर लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, और क्रोमोसोम्स क्या हैं, दीज आर द पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद प्रोटीन्स। जीन्स आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, जीन्स माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाई देते, क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। सिंगल जीन इज ए लोकस ऑन क्रोमोसोम, जीन सिंगल जीन क्या है, लोकस है क्रोमोसोम्स पे। सिंगल क्रोमोसोम कंप्राइजेज ऑफ मैनी जीन्स, एक जो क्रोमोसोम है दैट कंप्राइजेज ऑफ मैनी जीन्स। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। जीन्स किसके बने होते हैं, डीएनए के भी बने होते हैं, आरएनए के भी। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, हिस्टोन्स एंड आरएनए। क्रोमोसोम्स डीएनए, हिस्टोन्स और आरएनए के बने होते हैं। देखिए मैं डिस्कस कर रही थी जीन्स और क्रोमोसोम्स को डिस्कस करना। पहली चीज क्या है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स क्या है, दीज आर द पैक्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए विद प्रोटीन।
पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए के प्रोटीन्स के साथ। जीन्स आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। सिंगल जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर सिंगल जीन लोकेटेड होता है। और क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। जीन म्यूटेशंस बहुत स्मॉल होती हैं, लेकिन जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं, जीन म्यूटेशंस मीन्स अगर कोई सडन चेंज आता है जीन में वो काफ़ी स्मॉल होती हैं, और जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं दे आर वेरी लार्ज। जीन म्यूटेशन लीड टू पॉइंट म्यूटेशंस एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, इंसर्शंस एंड डिलीशंस। जीन म्यूटेशंस कौन सी होती हैं पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है, आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज लाइक डिलीशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, इन्वर्जन होता है, तो ये सब आपको हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे। डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, gene is a segment of DNA which is involved in carrying information for a particular. जीन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाई क्लास में पहुंच के उन्हें जीन की डेफिनेशन नहीं पता होती। जीन इज ए सेक्शन ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेक्शन है डीएनए का विच इज इन्वॉल्व इन कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट, जिसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है जो क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। जीन्स फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी के, और किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी ऑल हैव सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी एंड दिस इज द रीजन, और ये रीजन है कि वाई वी ऑल हैव सिमिलर करेक्टर्स। हमारे सिमिलर करेक्टर्स कैसे होते हैं? पेरेंट्स के साथ हमारे बहुत से करेक्टर्स सिमिलर होते हैं, लाइक द पिगमेंटेशन ऑफ द आई, हेयर कलर। देखिए पिगमेंटेशन ऑफ द आई हो गया, हेयर किसी का आईज ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी के आई बॉल्स ब्लैक है, तो हम देखते हैं कि अगर फादर के या मदर के आई कलर है कि जो पिगमेंटेशन है वो सेम है इस तरह से, तो ये सब किसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विच इज द जीन्स। There are about 29 to 30,000 of genes in every cell of the human body. 20,000 to 30,000 genes present होते हैं human body में। The term gene was first coined in the year 1909 by Danish botanist William Johansen। पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है जीन, ये किसने दी थी? विलियम जॉनसन ने दी थी। So in this I have discussed about the chromosomal theory of inheritance। मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बड़ा सिंपल करके समझाने की कोशिश की है। आप इसको एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ, और कोई प्रॉब्लम हो तो देखो। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इन लेक्चर्स में एक्चुअली, तो आप इन लेक्चर्स को सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी फॉलो करो, नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत आई तो लाइव क्लासेस में लेंगे। थैंक यू।